Is my screen visible, guys? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. So in the last lecture, mainly जो हम लोगों ने पढ़ा था, that was about carbohydrates. We studied about the different types of carbohydrate on the basis of functional group. We have aldose and ketos. याद है सबको ये SNOPCL में guys? Aldose, ketos वगैरह याद है ना? Yes, sir. Yes. And after that, we learned about the classification of carbohydrate on the basis of number of number of units given by the carbohydrate after hydrolysis. अगर एक unit मिलता है, then it is monosaccharide. If we get 2 to 10, then it is oligosaccharide. If we get more than 10, then it is. If we get more than 10 units of carbohydrate, more than 10 monosaccharide units of carbohydrate after hydrolysis, तो उसको क्या बोलते हैं? Polysaccharide. Polysaccharide, yeah, correct, very good. है ना, polysaccharide. Then we learnt about mainly जो हम लोगों ने पढ़ा था, that was preparation of glucose. So glucose is prepared by, and we also saw a few questions that hydrolysis of sucrose is going to give you one molecule of glucose and then fructose. Regarding glucose, what is correct? That it is the molecular formula is not right. It can be obtained by acid hydrolysis of cane sugar. Then we also saw that what is the enzyme used, which is used for the conversion of starch to maltose. It is diastase. फिर maltose से glucose कैसे बनता है? What enzyme is used to go from maltose to glucose? Maltose से glucose के लिए कौन सा enzyme? Anyone remembers? नहीं, किसी को नहीं याद. थोड़ा ध्यान लगाएं. बहुत आसान है. I mean, it is there in the options. ये options में है. If I change this question, अगर इस question को हम थोड़ा change करने की कोशिश करते हैं, so let us suppose यहाँ पे आपके पास है maltose is changed into glucose in the presence of. अब कौन सा हो जाएगा बताइए जरा? What will be the enzyme? Yes, Iram, correct, very good. माल्टेज यूज होता है ना. ठीक है, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने नोट्स भी नहीं बनाए हैं लास्ट क्लास के. ठीक है, माल्टेज यूज होता है. नेक्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट हैव नॉट बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने नहीं क्लासिफाई किया. सो देयर इज ओनली वन, there can be only one polyhydroxyaldehyde or ketone which is not optically active, which is this one. ठीक है, so it is polyhydroxy because we have two OH atoms and it is a ketone. So in this carbon atom has two hydrogen, that is why it is not optically active. This carbon is sp2 hybridized trigonal planar structure, that is why not optically active. And this one is what? It is also having two hydrogen, that is why it is not optically active. खैर, ये सारी चीजें तो हो चुकी थी. Then ये भी हो गया था, structure of glucose. So now in your NCERT, the main question is regarding the structure of glucose. This is very, very, very important. Here you are going to learn about a few reactions, और इनमें से कोई reaction जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में इस साल जरूर आएगा. हर साल में ये जरूर आता है, ठीक है ना. So if you are learning about biomolecules, if you are studying biomolecules, और आपने अगर ये 5-6 रिएक्शन छोड़ दिए, अगर ये आपने 5-6 रिएक्शन छोड़ दिए, तब समझ लीजिए आप मतलब आपने किया ही नहीं है. बिकॉज देयर विल बी एटलीस्ट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, कुछ भी सवाल हो सकता है. लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड हाउ द स्ट्रक्चर वाज डिराइव्ड, हाउ डिड वी केम टू नो दैट ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं. देन द फर्स्ट कार्बन एटम इज एल्डिहाइड, और उसके बाद बाकी सब में OH रहता है. देन वी हैव लाइक 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट. कैसे पता लगा इन सब चीजों के बारे में? सो फॉर दीज वी हैव डिफरेंट रिएक्शंस, है ना. तो सबसे पहले जो है, how did we come to know about 6 carbon atoms? ठीक है, so for 6 carbon atom, what was done? It was heated in the presence of red phosphorus and HI. HI is hydrogen iodide. अच्छा, then what happened? It formed N-hexane. क्या मिला आपको? हेक्सेन मिला. अच्छा, कोई बता सकता है कि
मान लीजिए देयर इज अ सैंपल, है ना, कोई सैंपल है यहाँ पे, जैसे सैंपल, जैसे ग्लूकोज का, अभी तो पता नहीं ना ग्लूकोज के अंदर क्या है नहीं है। इसको हमने क्या किया, रेड फॉस्फोरस से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HI, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमको हेक्सेन मिला, है ना, वी गॉट हेक्सेन। सो ऑब्वियस सी बात है, किसी को तो ऐसा नहीं लगता ना कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में मतलब हमने जब रेड फॉस्फोरस और HI डाला सैंपल में, तो ऐसे यहाँ पे लिखा के आ गया हेक्सेन, है ना। आई होप यू डोंट थिंक अबाउट केमिस्ट्री इन दैट, और इन दैट वे कि टेस्ट ट्यूब में लिखा क्या है, फिर टेस्ट ट्यूब से आवाज आ रही है, अब हेक्सेन बना, हेक्सेन इज फॉर्म्ड, इट डज नॉट हैपन लाइक दिस, राइट। सो एनी आइडिया दैट हाउ डिड वी कम टू नो दैट this compound which is formed after addition of red phosphorus and hydrogen iodide is hexane? उसके लिए हम आपको हिंट दे देते हैं that hexane is a liquid. हेक्सेन क्या है, हेक्सेन एक लिक्विड है। नाउ यू कैन हैव योर 1 मिनट 2 मिनट, हम आपको टाइम देते हैं। ट्राई टू थिंक कि कैसे पता चलेगा कि ये हेक्सेन ही है। हाउ डिड वी कम टू नो दैट दिस इज हेक्सेन? हो सकता है आप आंसर दे पाए, हो सकता है ना दे पाए, जैसे आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। 1 मिनट सोचिए इस बारे में, देन आई विल टेल यू द आंसर, कैसे पता चला कि हेक्सेन ही है। यू गाइस हैव 30 सेकंड्स मोर। किसी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक करे तो फिर प्लीज चैट में बताइए। अच्छा, उससे पहले ना थोड़ा सा और इस बारे में सोचिए, दैट लेट अस सपोज यू हैव अ ट्रांसपेरेंट लुकिंग लिक्विड, पानी जैसा दिख रहा है ना, लुक्स लाइक वाटर। कैन यू कंफर्म दैट इट इज वाटर ओनली? यू कैन नॉट ड्रिंक बट, है ना, अभी तो हम बोलते रहे कि ये पानी ही है, लेकिन अगर पता करने बोला जाए किसी लिक्विड के बारे में दैट ये लिक्विड है क्या, कोई आपके पास आइडिया? आई विल गिव यू एन आंसर बट, चलिए ठीक है, आई थिंक टाइम इज अप, तो फिर आंसर कीजिए। whenever you have been given a pure liquid, अगर आपको प्योर लिक्विड दी गई है ना, then each and every liquid it has a characteristic boiling point. अगर if there is a liquid and it boils at 100 degree Celsius, तो फिर ये लिक्विड क्या है? What is this liquid? Tell me guys. अरे बोलो भाई, if there is a liquid which boils at 100 degree Celsius, then कौन सा लिक्विड है ये? पहचानते हैं आप लोग इस लिक्विड को? बाकी लोग आंसर करें भाई, ऐसे बिल्कुल सुमुन बुकमुन उम्यून हो गया आप लोगों के साथ, है ना। व्हाट हैपेंड? राबिया, सफिया, सिद्रा, आमना, आयशा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन बॉईल होता है? करेक्ट, है ना। सो वाटर। सो इफ देयर इज अ सैंपल व्हिच इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलेंगे ये पानी है। उसी तरह से जो हेक्सेन है, इट वुड हैव इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी रजिस्टर्ड। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस एवरीवन नोज बिकॉज़ वी आर यूजिंग वाटर इन आवर डेली लाइफ, बट हेक्सेन इज यूज्ड बाय केमिस्ट इन देयर डेली लाइफ, तो उनको हेक्सेन के बॉइलिंग पॉइंट पता होगा। इफ नहीं पता होगा तो फिर उनके पास रिकॉर्ड्स में मौजूद होगा, नहीं होगा तो गूगल कर लेंगे, है ना। सो बट दे विल अंडरस्टैंड दैट इफ a particular sample is boiling at कोई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल कर रहा है, तो फिर जाके देखेंगे कि इस टेम्परेचर पे कौन सा लिक्विड बॉइल करता है, एंड दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू हेक्सेन। तो जब भी आपसे ये सवाल किया जा सकता है, ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवा वगैरह में, ये सारी चीजें पूछ दी सकती है कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई अ लिक्विड, तो फिर क्या करिए, उसको बॉइल कीजिए और देखिए कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बॉइल हो रहा है, एंड देन यू कैन टैली दैट, ओके फाइन, ये बॉइलिंग पॉइंट कौन से लिक्विड का होता है। Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. जल्दी से माइक ऑन करके बताएं. Is this clear? Yes, sir. Yes, ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। So this is the reaction structure of glucose that ये रिएक्शन है यहाँ पे, है ना, this is a reaction. So don't worry about noting this down. आपको बस ये याद रखना है कि N-हेक्सेन से हमको क्या पता चला? N-हेक्सेन से हमको पता चला glucose has 6 carbons. ठीक है, ये पता चला बस हेक्सेन से। when it was heated in the presence of red phosphorus and HI, that glucose तो हेक्सेन बना, then that means it is 6 carbon atoms और straight chain में है, normal हेक्सेन है तो straight chain में। after that the next third कैसे हो गया?
अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंड, हाँ ठीक। देन ग्लूकोज इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन। अब हाइड्रोक्सिल अमीन याद है किसी को? हाइड्रोक्सिल अमीन, raise your hand if you have heard this hydroxyl amine word previously. Raise your hand if you have heard this hydroxyl amine previously. ये आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा वॉलेटाइल सब्जेक्ट उड़ने लगा बिल्कुल, है ना? बॉइलिंग पॉइंट तो कम होती है सबकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है, काफी कम होती है, ठीक है। और उसी तरह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी, आप छोड़ दीजिए उसे खुला तो उड़ने लग जाएगा आपके दिमाग से। वही हो रहा है, किसी ने नहीं सुना है हाइड्रोक्सिल अमीन? अरे भाई साहब, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल्स, ठीक है, तो उसमें एक था हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, ठीक है। सो दिस वाज हाइड्रोक्सिल अमीन। Now when glucose it reacts with hydroxyl amine, then it forms oxime, then it forms oxime। और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग है, एड्स अ होगा तो स्पीच है यहाँ पे, एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रेट। दैट मींस अवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अपना ग्लूकोज क्या कर रहा है? इट इज गिविंग यू कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल यानी कि कार्बोनिल में क्या क्या हो सकता है? यू कैन हैव एल्डिहाइड, यू कैन हैव कीटोन्स। तो या तो अपना ग्लूकोज एल्डिहाइड है उसके अंदर, या तो अपने ग्लूकोज में क्या है? कीटोन। बात समझ में आ रही है? ऐसा नोटिसल भी है। हाँ जी बताएं। अरे बोलो भाई। अरे नहीं आया, किसी को नहीं आया। अरे कैन आई हैव योर माइक्स ऑन, ऑल ऑफ यू गाइस? माइक ऑन करें सबको प्लीज, जल्दी माइक ऑन करें। फिया, आमना, आयशा, डेबोरा, किरम, सफिया एंड सफिया, ठीक है। इफ अ कंपाउंड है आपके पास, इट इज रिएक्टिंग विद NH2OH टू गिव यू ऑक्साइम। तो इस कंपाउंड के बारे में हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। भाई बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना? ठीक है, ये सब गाइस टेल मी। Yes, sir. यस ना? ठीक है चलो। तो दैट मींस ग्लूकोज, आवर ग्लूकोज इट इज आइदर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप और अ कीटोन ग्रुप। दैट मींस वो क्या बताता है? नाउ दिस रिएक्शन, बोथ ऑफ दीज रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन एंड साइनोहाइड्रिन, दीज रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे ग्लूकोज में। अब एल्डिहाइड है या कीटोन है ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। नाउ दीज आर द रिएक्शंस दैट NH2OH के साथ इट फॉर्म्स ग्लूकोऑक्साइम, इसको बोलेंगे इन जनरल इट इज नोन एज ऑक्साइम, लेकिन ये ग्लूकोऑक्साइम HCN के साथ इट इज गोइंग टू गिव यू साइनोहाइड्रिन, ठीक है, इट्स गोइंग टू गिव यू साइनोहाइड्रिन। नाउ आफ्टर दैट देयर वाज अनदर रिएक्शन डन, that was done with a very mild oxidizing agent like bromine water, है ना, Br2 के साथ इन्होंने रिएक्शन कराया। इफ यू रिमेंबर करेक्टली, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी है ना भाई, बिकॉज इसके पास एक हाइड्रोजन रहता है, it has a hydrogen, right? So it can be oxidized very easily. कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजी, आप लोगों ने लिखा हुआ होगा जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कराया होगा। देन दैट इज व्हाई एल्डिहाइड जो है ना, अब याद करो, एल्डिहाइड गिव रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट फिलिंग सोल्यूशन। क्यों? बिकॉज एल्डिहाइड इज व्हाट, इट इज अ वेरी, इट कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज। तो ग्लूकोज को जब हमने रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या हुआ? इट गिव्स यू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला आपको? यू गॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड confirms the presence of aldehydic group। बात समझ में आई? बोलो भाई, बात Yes, समझ sir. में आई? अरे भाई बाकी लोग बोले यार, जूम में ना Yes, बहुत sir. आवाज कम आ रहा है, पता नहीं क्यों कम आ रहा है। एक सेकंड, कैन यू स्पीक अगेन गाइस? बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Okay, moving on.
Then we did acetylation. Acetylation क्या है? If you guys remember, acetyl group, acetyl CH3CO, CH3CO, इसको कर दीजिए आप twice and then O, ठीक है? तो ये वाला ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज द रिएजेंट, ठीक है? एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. Now, when we reacted glucose with acetic anhydride, then we formed pentaacetate. Pentaacetate. Pentaacetate का मतलब यहाँ पे 5 कार्बन ऐसे हैं, 5 कार्बन्स have OH group. क्या पता चला? Since it exists as a stable compound, 5 OH group should be attached to different carbon atoms, है ना? अलग अलग कार्बन एटम्स में आपको क्या मिलेंगे? 5 OH ग्रुप मिले. 5 OH ग्रुप, ऐसा नहीं कि 2-3 में ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है that we are having one carbon with 2 OH groups, ठीक है? तो this gem diol cannot exist. Now if it is giving pentaacetate, इसका मतलब ये है कि 5 OH ग्रुप है and all those 5 OH groups are in different carbon atoms. तो 5 कार्बन तो यहां से हो गए और एक कार्बन है आपके पास एल्डिहाइड वाला. सो नाउ योर स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रक्चर कर लिया है. 6 कार्बन थे, 6 कार्बन, इट वाज हैविंग 5 OH ग्रुप और एक में आपके पास क्या, एल्डिहाइड. बट बेसिकली इसके बाद भी बहुत सारे रिएक्शन, अभी कुछ रिएक्शंस और हैं. तो दिस इज द रिएक्शन. आफ्टर दैट, उसके बाद इन्होंने किया एक रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. Now dilute nitric acid is a oxidizing agent. ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा? It will oxidize the OH group. अगर आपके पास CH2OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, if you have primary alcohol, this will oxidize it to carboxylic acid, है ना? Number of carbon atoms will be the same. 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? It is going to oxidize it into carboxylic acid. और वही हुआ. इसका मतलब यहाँ पे आपके पास you had 6 carbon atom. 4 of the carbon atom, it is having 2 degree OH groups. 2 डिग्री के अल्कोहलिक ग्रुप है. एक कार्बन के पास आपके पास 1 डिग्री OH ग्रुप है, 1 डिग्री OH. एंड उसके बाद आपके पास 1 कार्बन आटम, इट इज हैविंग द एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप. बात समझ में आई मेरे भाई? बोलो गाइस, टेल मी, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. है ना? याद रहेगा? याद नहीं रहेगा? याद रहना भी जरूरी है ना, कि कौन से टेस्ट से, मतलब कौन से रिएक्शन से क्या मिल रहा था आपको, ठीक है? चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इफ यू रिमेम्बर, ये ग्लूकोनिक एसिड ना, तो ग्लूकोनिक एसिड बना था जब वी ट्रीटेड ग्लूकोज. कहाँ गया भाई ग्लूकोज? है ना, ग्लूकोज को हमने ट्रीट किया था किससे? Br2 से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फिर हमको क्या मिला था? वी गॉट ग्लूकोनिक एसिड. जब ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकोज को भी ऑक्सीडाइज किया, तो हम लोग को सेम कंपाउंड मिला, दैट इज नोन एज सैकरिक एसिड. इसमें ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे में कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर क्या रहता है बीच में? यू हैव OH ग्रुप्स. तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6. सेकेंड, COOH, sorry, eraser. This is 6 carbon atoms, no? You have COH here, you have COH here, यहाँ पे आपके पास OH, here you have OH, here you have OH, here you have OH. This is known as saccharic acid. ठीक है, ये आपको उतना ज्यादा ये नहीं है. So dilute nitric acid, it was stronger. तो इन्होंने क्या किया? बोथ CH और इसको ये कर दिया. चलिए अब जरा जरा बताइए. सबसे पहले 6 कार्बन एटम्स, टेल मी इन द चैट, क्या कैसे पता चला 6 कार्बन एटम्स है? व्हाट वाज द रिएजेंट यूज्ड? ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ हुआ तो पता चला 6 कार्बन एटम्स है? टेल मी इन द चैट गाइस, कुछ तो याद होगा, या फिर ये बता दीजिए क्या बना तो पता चला, व्हाट वाज फॉर्म? वेरी गुड, रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस एंड HI. ठीक है, 6 कार्बन एटम्स के बाद कैसे पता चला दैट वी आर हैविंग कार्बोनिल ग्रुप?
बताइए कैसे पता चला दैट वी आर हैविंग कार्बोनिल ग्रुप? कार्बन भाई आंसर करें गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत कम लोग। नहीं नहीं नहीं, सी बॉइलिंग पॉइंट से नहीं पता चला। हाँ इरम सही है, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम अ बिट, हम कर रहे, टाइम दे रहे हैं आप लोग को। हाँ आमना सही है ये वाला आपका, एंड आई थिंक दिस वाज राबिया बिफोर। सिद्रा एन हेक्सेन पुराना आप आंसर कर रहे हैं, 6 कार्बन एटम का ना एन हेक्सेन है आंसर, ठीक है। इसका है 6 कार्बन एटम्स का, दैट इट इज एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का फॉर्मेशन, एन हेक्सेन ऑन रिएक्शन विथ red phosphorus and HI, red phosphorus and HI। कार्बोनिल ग्रुप का और बताएं, इरम ने सही बताया, आमना ने और सही बताया, आमना ने सही बताया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ याद आया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है। रिएजेंट याद करें, रिएजेंट गाइस, रिएजेंट। लड़कों को कुछ नहीं याद है क्या फादिल? हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? फादिल डबल कुछ नहीं याद, भूल जा रहे सब। कार्बोनिल के लिए वी कैन यूज टू रिएजेंट, यू कैन यूज NH2OH एंड HCN, है ना। तो ऑक्साइन या फिर साइनोहाइड्रिन, दोनों में से कुछ भी बना ले। आफ्टर कार्बोनिल ग्रुप, हाउ डिड वी कम टू नो दैट वी हैव 5 OH ग्रुप्स? 5 OH ग्रुप के लिए क्या किया हम लोगों ने? What did we do to glucose in order to understand that it is having 5 OH groups? Write the answer in the chat, जल्दी लिखे, जल्दी जल्दी। Acetylation, what did we do? Acetylation. How did we come to know that we have 1 degree OH in 1 कार्बन? एक कार्बन के पास 1 डिग्री OH है। रिएक्शन किसके साथ हुआ? व्हाट वाज द रिएक्शन? व्हाट वाज द रिएजेंट? व्हाट वाज द रिएजेंट? ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, चलिए हम आपको फिर, आप लोग लिख लीजिए फिर, ऐसे तो भूल जा रहे हैं अगर आप लोग। 1 डिग्री OH इन 1 कार्बन, दिस नाइट्रिक एसिड ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चलिए ठीक है, हम थोड़ा हम पीछे जाते हैं। इसमें समरी में नहीं है। चलिए फिर आते हैं वापस। चलिए रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग, ये भी लिख लीजिएगा, रफ टाइप का लिखिए, ठीक है। देन फिर तो हम भेज ही देंगे आप लोग को होल स्लाइड्स, सारी स्लाइड्स तो भेज देंगे आप लोगों को। राइट इट डाउन फास्ट, आई विल गिव यू, एक एक मिनट देंगे इस चीज में, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग को, वरना आप लोग फिर बहुत टाइम ले लेते हैं। ठीक है जल्दी लिखिए, 1 मिनट यू आर हैविंग फॉर दिस स्लाइड।
Time is up, guys. Write these two reactions. Again, 1 minute for this. Again, 1 minute for this. Okay, guys, time is up for this slide. चलिए ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए Br2 है ना. This is Br2 reaction. Yeah. 1 more minute for this. One minute is up for this slide also. भाई यार आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो ये बताओ. नहीं लिख रहे फिर क्या ही फायदा होगा. लिखिए, ठीक है. राइट दिस डाउन. ये क्या बताता वो हम लिख देते हैं. टेल्स अबाउट 5OH in 5 different carbons. Time is up for this slide also. Just let me know है ना अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा. 1 minute is enough. हम ये सोच के आगे कर रहे हैं. ठीक है. So this is dilute nitric acid. इसमें लिख देते हैं dilute HNO3. This is also dilute HNO3. ठीक है. So tells about presence of 1 degree Welch. यार चैट में मत बोलो अगर नहीं लिखा आपने नाइट्रिक.
Time is up for this slide also. ठीक है, तो पांचों आपके सारे रिएक्शंस हो गए होंगे अब तो। चलिए, after this is important again that Emil Fischer was the one scientist who gave a particular configuration of the glucose structure. So इसको याद करने का तरीका क्या है? It is like this: plus minus plus plus. देखिए आपके पास you have 6 carbon atom, तो ऊपर वाला CHO, the first carbon, the last carbon is CH2OH. Then in the middle we have 4 carbon atoms. चारों कार्बन में there will be two groups. तो कैसे याद करना? प्लस माइनस प्लस एंड प्लस. जहां पे प्लस है वहां पे OH, जहां पे माइनस है वहां पे H, H के अपोजिट में OH और OH के अपोजिट में H. याद रहेगा ये सोनो प्लीज टेल मी गाइस. अरे बोलो भाई. Yes, sir. यस ना. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिए, आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छा से. जो प्लस साइन होता है इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, dextrorotatory, levorotatory, if you remember. So plus sign is used to denote dextrorotatory. Minus sign is used to denote levorotatory. ठीक है. So here in this particular, in glucose structure, we have 4 carbon atoms which are chiral. ये एक carbon, second carbon, third carbon, and fourth carbon. So these 4 carbon atoms are chiral. First carbon atom is dextrorotatory, second carbon atom is levorotatory, third carbon atom is dextro, fourth is also dextrorotatory. तो ओवरऑल बताइए आप लोग, ओवरऑल बताइए that glucose will be dextrorotatory या फिर levorotatory? बोलो भाई. Dextrorotatory है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे कार्बन एटम्स हैं. we have 3 carbon atoms which have the tendency to rotate the plane polarized light in the right direction. ठीक है, राइट डायरेक्शन की तरफ वो रोटेट कर देगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी. और ग्लूकोज को इस वजह से क्या बोला जाता है? डेक्स्ट्रोज बोला जाता है. डेक्स्ट्रोज, दैट इट इज अ टाइप ऑफ डेक्स्ट्रोज, यानी कि इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड राइट इन द एंटी-क्लॉकवाइज ना, राइट तो हाँ, राइट एंटी-क्लॉकवाइज, इन द एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर राइट टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो दिस वाज गिवन बाय फिशर. आप लोग लिख लेंगे आराम से. यस और नो प्लीज टेल मी गाइस दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. एक काम कीजिए, ट्राई टू राइट द फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, फिशर स्ट्रक्चर. अभी आप कैसे याद करना है? प्लस माइनस हम लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस, ऊपर CHO नीचे CH2OH. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज राइट द फिशर स्ट्रक्चर एंड सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप में भेजिए. write the Fisher structure plus minus plus plus करके. The first carbon is CHO, the last carbon is CH2H. 4 कार्बन का हमने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया. लिख के एक बार भेज दीजिए बस. आप थोड़ा दिमाग लगा के लिख लेंगे तो आप लोग को याद रह जाएगा. Send the answer in my Zoom. Sorry, my Zoom में कैसे भेजेंगे आप लोग? Send the answers on my WhatsApp. चलिए, कुछ आंसर्स आए हैं क्या? एक आंसर आया, शायद इरम का आया आंसर. तो इरम, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले से आता था? हाँ इरम, नहीं सर. नहीं आता था. 11th में नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को?
नहीं होते। सॉरी। नो सर, नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है। कुछ लोगों ने भेजा, डेबोरा ने भेजा, डेबोरा आपका भी सही है। और किसने भेजा है भाई? आमना ने भेजा है, फिर आमना प्लस माइनस प्लस प्लस ओ एच, ठीक है जी, आपका भी सही है। सिद्रा ने भेजा है, फिर ओ एच एच ओ एच ओ एच, ठीक है सही है। सी एच ओ, ठीक है चलिए। ठीक है, ग्लूकोज किस, अरे फिया, आपके पास नोटबुक नहीं है क्या आपके पास फिया? बाहर घूम रहे हैं आप? हाँ फिया, व्हाट हैपेंड? अरे चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके फाइन, ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव सीन दिस इज एमिल फिशर का स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। वी कॉल दिस फिशर स्ट्रक्चर। ठीक है, नो प्रॉब्लम फिया, इट्स फाइन। नाउ मूविंग ऑन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, डी एंड एल डेजिग्नेशन। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले ये बताइए, ये कार्बन एटम, इसके पास एक ग्रुप है CHO, वन ग्रुप इज OH, अनदर ग्रुप इज हाइड्रोजन, और उसके बाद एक ग्रुप है CH2H। चारों के चारों ग्रुप्स अलग हैं, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। चारों के चारों ग्रुप्स, यस सर। यस है सर। ना? दैट मींस दिस कार्बन एटम इज गोइंग टू बी व्हाट? कायरल कार्बन। बोलो भाई। है ना? इफ इट इज कायरल कार्बन तो इसका एक एनांशोमेरिक फॉर्म होगा, करेक्ट है? बोलो भाई। यस सर। सही है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से, ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका अगर एनांशोमेरिक फॉर्म बना है तो यू गॉट दिस स्ट्रक्चर, है ना? एनांशोमेरिक फॉर्म, मिरर स्ट्रक्चर जो होता है आपको, ये वाला मिल गया। दैट मीन्स इसमें से ये जो होगा एक, दैट विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा वाला लेवो रोटेटरी। इफ इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? लेवो रोटेटरी हो जाएगा ना। जैसे ये प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। अब उसके बाद लोगों ने क्या किया, उसके बाद लोगों ने ये किया कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सी दिस इज द प्लस फॉर्म ना, ये डी फॉर्म है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बोलो भाई। दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अरे टेल मी, अरे बोलो भाई, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना। प्लस साइन का मतलब, यस सर, इट्स प्लस साइन थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फिया। अब लोगों ने बोला, इफ देर इज अ कार्बोहाइड्रेट जिसके पास सेकेंड लास्ट कार्बन is having OH on right side, OH राइट साइड में होगा, देन उसको हम लोग वी विल कॉल द डी फॉर्म। ठीक है, इसको हम डी फॉर्म बोलेंगे। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, इस डी का मतलब ये नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहां से स्टार्ट किया? ग्लिसराल्डिहाइड से स्टार्ट किया। ठीक है, दे टुक ग्लिसराल्डिहाइड और उसके कॉन्फ़िगरेशन से, अगर डी कुछ बोला हुआ है ना किसी चीज के बारे में, डी ग्लूकोज ऐसे लिखा हुआ आपको, डी ग्लूकोज, ठीक है, तो डी ग्लूकोज का मतलब ये होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में OH राइट साइड में होगा, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में।
ऊपर के सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम। अगर आपसे कहा गया एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज का मतलब ये नहीं कि लेवोरोटेटरी है, ना ना ना। एल ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि जो 4 कार्बन एटम्स हैं ऊपर के सारे कॉन्फ़िगरेशन डी की तरह ही है, बस लास्ट कार्बन में क्या होगा, यू विल हैव OH इन द लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन इन द राइट साइड। सिर्फ इस सेकंड लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की जा रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर कार्बन एटम्स या फिर द एप सोर्स ग्लूकोज के लिए या ग्लूकोज के लिए वट एवर यू हैव रिटन दैट इज ओनली एंड ओनली ट्रू फॉर ग्लूकोज, तभी इसलिए हम बोलेंगे याद मत कीजिए उस चीज को। What I am trying to say, it is general for each, for any carbohydrate. If the second last carbon atom is having OH on the right side, then we call it the D इसको बोलते हैं D form। ठीक है, क्या बोलते हैं D form। लेकिन इस D का कतई ये मतलब नहीं है that it is dextrorotatory। इसका मतलब बस इतना है that the second last carbon atom is having OH on the right side। बात समझ में आई? Yes or no? Please tell me guys। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। D these two adopt. हाँ, a monosaccharide whose highest numbered chiral center, ये बताओ, ये वही मतलब है हाईएस्ट। देखो बहुत ही अजीब तरीके से लिखा हुआ है लेकिन वो सेम ही चीज है। मतलब इस चीज को किताबों में ऐसे लिखा जाता है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम, ये पेन अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब लास्ट होता है, पेन अल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। सी इट्स द सेम थिंग दैट वी हैव सेड। 1 2 3 4, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे आपका लीजिए CHO। हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर, पहला कायरल सेंटर 1, सेकंड कायरल सेंटर 2, थर्ड एंड फोर्थ। तो हाईएस्ट कायरल सेंटर ये हो गया। इसका अगर इफ दिस इज हैविंग सेम एज डी, यानी कि OH इसके पास किधर राइट साइड में हो, तो इसको क्या बोलेंगे, डी बोलते हैं। ठीक है, इसका यही मतलब है। अब नेक्स्ट आते हैं। D sugars have OH on the penultimate carbon on the right, L sugars have OH on the left। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास समझ में आ रहा है ना। देखिए एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे आपके पास OH on the right और ये OH on the left, तो ये क्या हो गया, ये D फॉर्म हो गया, ये L फॉर्म हो गया, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर वो लेवोरोटेटरी। ठीक है, दैट इज द ओनली मीनिंग कि हाईएस्ट नंबर कार्बन एटम मतलब कि क्या हो गया आपका, दिस इज द लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन एटम। इसको लिख लो भाई तुम लोग प्लीज। The D and designation are not necessarily related to the optical rotation of sugars। Write this down। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो है आपके पास ना, डिस्पाइट हैविंग दिस पर्टिकुलर, ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी बिकॉज स्किफ टेस्ट इज इन अमीन्स, है ना, ये अमीन्स का पार्ट है। ठीक है, तो स्किफ टेस्ट को आपको छोड़ दीजिए। ये समझिए, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड
Now hydrogen sulfide, it is what it is, nucleophilic addition reaction. तो आपका जो एल्डिहाइड और जो आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज वाज गिविंग यू ऑक्साइन एंड cyanohydrin, ये दोनों दे रहा था ये, but it was not giving any addition product with सोडियम बाइसल्फाइड. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके पास कंप्लीट कार्बोनिल कार्बन वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, वरना ये हमेशा देता. तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि कार्बनिक कंपाउंड नहीं तो फिर उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बाद में देखेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इसको सवाल कुछ है, सवाल हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना, इसको भी ध्यान दीजिए. ये पढ़िए जरा. Try to do this question. Send the answer in the Zoom chat. ठीक आंसर आया यार अभी तक. बाकी लोग क्या हो गया? अभी तो कराया था डी शुगर एल शुगर शुगर ना. आयशा, आमना, तारीफ, देवपुरा. अरे भाई व्हाट हैपेंड अदर गाइस, आंसर करो यार. अरे तो अलग अलग आंसर आ रहा है. इसी चलिए, पहला वाला बताइए, माइक ऑन करके, माइक ऑन करके पहला वाला बताइए, डी शुगर या एल शुगर? पहला वाला, फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज डी या एल? बोलो भाई, जल्दी बोलो, माइक ऑन करके जल्दी बोलो. सिया, आमना, L. डेबोरा, इरम. एल L. है ना, बिकॉज लेफ्ट साइड एल है. व्हाट अबाउट द सेकंड वन, डी या एल? D. D. डी. थर्ड वन? D. थर्ड वन इज D. आल्सो डी, है ना. एक बार देख लेते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH है, पॉलीहाइड्रोक्स दो OH है, दो H एंड ठीक है. तो फर्स्ट एंड सेकंड आर एल शुगर्स? नहीं भाई. सेकंड एंड थर्ड आर एल शुगर्स? नहीं भाई. सेकंड एंड थर्ड आर डी शुगर्स? हाँ, सेकंड एंड थर्ड आर डी शुगर. क्या? सॉरी, Option D is the answer. ऑप्शन? D. अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड है ना, सेकंड थर्ड पढ़ रहे हैं, सॉरी सॉरी. फर्स्ट एंड थर्ड आर डी शुगर्स? नो, फर्स्ट इज एल शुगर, करेक्ट. हम गलत पढ़ रहे थे, माय बैड. ठीक है, सो द डी विल बी द आंसर. So, हाँ जी बताएं. हाँ जी, the first structure wrong है, right? फर्स्ट स्ट्रक्चर रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? फिर एक साइड पे H होता है, नेक्स्ट OH होता है. नहीं तो है ना, OH और H दोनों ही तो है. नहीं सर, वैसे नहीं. H फिर OH राइट साइड में वर्टिकली.
नहीं, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? Leo rotatory and dextro rotatory one again. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं इरम हम समझे नहीं, वैसा क्यों होना चाहिए? जैसे we can have repetitions, right? देखो जैसे OH और OH राइट साइड में ही है। हाँ सर, ओके ओके। ये ले लीजिए। सर भी लिख लिया। नहीं नहीं, फिया बोल रहे थे ना, फिया, दिस वन ना। Yes, sir. Yes, sir. डन। Yeah. मूविंग ऑन। ये पढ़िए सवाल। D-glucose reacts with hydroxylamine and yields an oxime. The structure of oxime will be प्लस माइनस प्लस प्लस को ध्यान में रखते हुए बताइए कौन सा स्ट्रक्चर होगा ABCD। तो आंसर आया है सिद्धरा एंड इरम, या का भी आ गया। आई थिंक इट इज फाइन। Plus minus plus plus है ना। So basically what you need to see is in glucose, in the plus, the D form of glucose, we have plus minus plus plus, and hydroxylamine when it reacts it is only going to alter the structure of the first aldehyde group, बाकी सब कुछ सेम रहेगा है ना। So it is going to be the D structure। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ ये बताइए, which of the following indicates the presence of 5 OH groups in the glucose? कौन से रिएक्शन से पता चलता है 5 OH groups? We've got one answer only. Serum correct नहीं ना, ऐसा रिएक्शन ऐसे ऐसी बातें ना करें प्लीज। हाँ सिद्रा करेक्ट। फिया देखिए, पेंटा एसिटाइल ना, 5 कैसे, ये एसिटाइल ग्रुप, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। साइनोहाइड्रिन तो क्या बताएगा, साइनोहाइड्रिन विल टेल यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ CO। रिएक्शन विद फिलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन ये बताएगा एल्डिहाइड, CHO है। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ वेरी गुड। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में कुछ खास वैसा है नहीं, डाइसैकराइड है, फिर आपके पास सुक्रोज है, इनवर्ट शुगर, अच्छा चलिए ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सुक्रोज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। सुक्रोज, फ्रक्टोज में देखिए यू डोंट हैव एनीथिंग डिफिकल्ट इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में बेसिकली आपको क्या याद रखना है, वही सेम चीज है, you have plus minus plus plus, the difference is the second carbon atom is ketone, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा बस है ना, OH नहीं रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला whatever your first carbon is CH2H, last carbon is CH2H, then you have ketonic group, तो आपके पास यहाँ पे H, OH और OH रहेगा। ठीक है, so this is also predominantly what D rotate है ना, it is dextro rotate। the D in the sense we second last carbon में आपके पास
where is my reader, sir? फ्रक्टोज जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रक्टोज इज माइनस फ्रक्टोज ना, माइनस का मतलब क्या है, इट इज लेवोरोटेटरी। माय बैड, हमने थोड़ा सा उल्टा कह दिया था, लेकिन ये दिस इज अ डी शुगर। ठीक है, तो माइनस साइन क्या बताएगा, दैट इट इज गोइंग टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड राइट इन द लेफ्ट डायरेक्शन। और डी क्या बताएगा कि सेकंड लास्ट कार्बन में OH जो है, सेकंड लास्ट कार्बन में OH जो है, दैट इज ऑन द राइट साइड। गॉट इट गाइस? इसनो प्लीज टेल मी। आमना, आयशा, डेबोरा, इरम, प्रिया, बात समझ में आई? Yes. सुनो, है ना? चलिए ठीक है सर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रक्टोज। छोटा सा पार्ट है, नीली इसका स्ट्रक्चर ही एक है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आ सकता है। और फिर दूसरा ये कि प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज की कैसे आपके पास फ्रक्टोज आएगा, ऑब्टेन फ्रॉम कीटो हेक्सोज हाइड्रोलाइसिस। हमने देखा था ना कि सुक्रोज से आ सकता है फ्रक्टोज, ठीक है, तो इतना ही ज्यादा है और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। देन आपके पास व्हेन वी आर गोइंग टू मूव टू डाइसैक्राइड, वहां पे इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है